ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। बाबा बोलছেন সবাইকে এই রহস্য শোনাও যে माउंट आबू হলো सबसे बड़ो तीर्थस्थान। प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। बाबा बोलছেন কোন কথা মানুষেরা যদি বুঝে যায় তাহলে এখানে भीड़ হয়ে যায়। उत्तर, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वो अभी फिर से सिखा रहे हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापना कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। तो बाबा बोलছেন মানুষজনের শুধু বোঝাটা বাকি আছে, তাই না হলে কোথায় অমরনাথ, কোথায় কৈলাসনাথ, সব জায়গায় তারা পৌঁছে যাবে যদি বোঝে যে এখানে ভগবান আসে, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন যেহেতু চৈতন্য ইয়াদগার দিলবাড়া মন্দিরও আছে, যে কি করে আদিদেব মানে ব্রহ্মা বাবা এসেছিল তার 108, তাই না, যারা বাপ সমান আত্মা তৈরি হয়েছিল, সব 33 কোটি দেবদেবীরা কিভাবে এখান থেকেই তৈরি হয়েছিল তার ইয়াদগারও দিলবাড়া মন্দির। তাই জন্যে বাবা বলছেন কিছু সময় বাকি, সব মানুষেরা এই তীর্থস্থানকে তো চিনবেই, তখন আবুতে ভিড় লেগে যাবে। বাবা বলেছে না অব্যক্ত বাণীগুলোতে,
এক সময়ে এমন হবে যে আবু পাহাড় তো বিশাল বড়, কিন্তু সেই মাথা থেকে লাস্ট অবধি শান্তিবন অবধি, পাণ্ডব ভবন থেকে শান্তিবন অবধি শুধু বাবার বাচ্চারা, মানে এত বড় লাইন হয়ে যাবে পুরো, মানে শুধু মনে হবে যেন রাজহংসেরা আছে, শুধু ফরিস্তারা ওইখানে রয়েছে, এরকম দৃশ্য হবে। আর বাবা এটাও বলেছেন অব্যক্তবাণীতে যে যেই সুটকেস নিয়ে আসবে, তাই না, এত লোক আসলে কোথায় থাকতে দেবে, তো যেই সুটকেস নিয়ে আসবে সেটাই তোমার, তাই না, তখন তো মাউন্ট আবু স্টেশন হয়নি, তখন থেকে বাবা বলেছিল যে আবু রোড অবধি স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশনও হবে আর এরোড্রমও হবে, তাই না। তো স্টেশন তো অনেক আগে হয়েও গেছে, এখন এরোড্রমও হতে চলেছে, তাই না। তো চিন্তা করো, বাবা আগেই বলে দিয়েছে যে নামবে, সুটকেস মাথায় দেবে, আবুর পাহাড়ি তোমার বিছানা হবে, আলাদা কোনো বিছানা দেওয়ার জায়গা থাকবে না, এত সেখানে ভিড় লাগবে বাবার বাচ্চাদের, তাই না। ভাবো 33 কোটি দেবদেবী, তো কত পৌঁছাবে এক সময়, যারা বিশেষ করে শতযুগী আত্মা হবে, লাস্টের সময় তো সব ওখানে পৌঁছাবে না। তো বাবা লাস্টের সময়ের জন্যে অনেক কিছু ইশারা দিয়েছেন না, এটাও বলেছেন লাস্টের ট্রেন এমন হবে সব জায়গা থেকে আবু জরুর পৌঁছাবে, তাই না, এমন ডাইরেক্ট ট্রেন হবে যে আমরা সব 2-3টে, কেউ তো নেপালের, সাউথের, ওরা সব 3টে ট্রেন চেঞ্জ করে আসে, ওদের 3 দিন 3 রাত লাগে, তাই না। আরও সব এইরকম চারিদিক থেকে বাবার বাচ্চারা কত কষ্ট করে আসে। বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে একটাই সব দিক থেকে কানেক্টিং ট্রেন হবে, এরকম বেরোবে, আর সেটাতেও যারা টিকিট কেটে থাকবে হয়তো তারা পৌঁছাবে না, এমন এমন সিচুয়েশন আসবে, যার যেখানে অ্যাটাচমেন্ট তার উপরে এমন পরিস্থিতি আসবে, তাই না, সে ব্যক্তি হোক, বস্তু হোক, সম্পত্তি হোক, সে ট্রেনে উঠতেই পারবে না, তাই না, যাবেই না, সে ট্রেনে উঠার জন্যেই যাবে না। আর যে বাবার পাক্কা বাচ্চা থাকবে সে এমনি টিকিট, ওয়েটিংয়ের টিকিট কেটে চলে যাবে, দিয়ে সে সিটও পেয়ে যাবে আর বাবার বাড়ি পৌঁছেও যাবে, তাই না। আর সেখানে এত ভিড় হবে, বাবা বলেছে শুধু তোমার সুটকেসই তোমার বালিশ হবে, আর খোলা আকাশই তোমার ছাদ হবে, আর আবুর মাটি তোমার বিছানা হবে, তাই না। আবুর মাটি এক একটা ফরিস্তাকে নিয়ে থাকবে, তাই না। এইরকম তীর্থস্থান হবে মাউন্ট আবু, তাই না, এরকমও বাবা বলে দিয়েছেন, তাই না। ধীরে 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 হচ্ছে একটু একটু করে। तो बाबा बोलते हैं ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं, यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को, रात दिन का फ़र्क है, वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं, তাই না। মাউন্ট আবুতে মুরলি ক্লাস আর সেন্টারে মুরলি ক্লাস, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না। সেন্টারে তো বাড়ি ঘর থেকে আসে, বুদ্ধিতে মিত্র সম্বন্ধীও কখনো কখনো মনে পড়ে যায়, গিয়ে এই কাজ করতে হবে, ওটা করতে হবে, কিন্তু বাবার বাড়িতে কি হয়, কোথায় বুদ্ধি যায় না, একাগ্র স্থিতি থাকে যে বাবা কি বলছে। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो शिव बाबा বলছেন এইটুকুও বাবার বাচ্চাগুলো বুঝতে পারছে না যে নিজের শিব বাবা, যাকে এত গিয়ে জল ঢালতে, সেই শিব বাবা নিজে এসে सेवा করছে বাচ্চাদের। जो बाप इसमें विराजमान हैं, यहाँ विराजमान हैं, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं,
जैसे और लोग कहते हैं, हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। तो बाबा বলছেন যে নিশ্চয়ই বুদ্ধি বাচ্চা হবে, সে থেমে থাকবে না, সে পুরুষার্থ করবে যে কিভাবে পবিত্র হব আর সবাইকে পবিত্র বানাবো। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। बाबा कमप्लेन করছে জ্ঞানেও কমি, যোগেও কমি, শোনে অথচ ধারণা মূরতে কমি। ঠিক বলছে বাবা। বাবা ঠিক বলছে, ঠিক কমপ্লেন করছে বাবা। কি জ্ঞান যোগ ঠিকঠাক করছি, ধারণা করছি, বাবা যেগুলো বলে সেগুলো মাথার মধ্যে ঘোরে সারাদিন, না মিত্র সম্বন্ধী কি বলে সেটাই ঘোরে। তো ধারণা अगर हो तो फिर औरों को धारणा करावे। বাবা বলছে যে ধারণা মূরত হবে তো বাবাকে 50 বার বলতে হবে টিচার লাগে, টিচার লাগবে, আর টিচার তৈরিই হচ্ছে না। তার মানে ধারণা মূরত হচ্ছে না, তাই না। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वो कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है, बाप आया हुआ है। कैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है, और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है, তাই না। দিলবাড়া মন্দিরের ছাদে 33 কোটি দেবদেবীর রাস করতে দেখানো, তার মানে কিভাবে বিশ্ব শান্তি আসবে তার দৃশ্য ওখানে দেখান। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वो तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी दिलवाड़ा मंदिर में चल कर देखो, তাই না। বাবা বলছেন যে যখন কোথায় ভাষণ করো তো ওদেরকে বলো যে বিশ্বের শান্তি চাও, সে শান্তি তো ছিল লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে, আর কেমন শান্তিতে ছিল সেটা দিলবাড়া মন্দিরের ছাদে দৃশ্য দেখানো আছে। मॉडल दिखाया जाएगा ना, वो चल कर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया, তাই না। সেই মন্দিরও তো কোনো মিস্ত্রিরা বানিয়েছে, তাই না, রাজা বানিয়েছে। তো সে রাজার এরকম সংকল্প আসলো কি করে যে এরকম 33 কোটি দেবদেবীকে আঁকতে হবে, তাই না। প্রত্যেকটা দিওয়ালে ছোট্ট 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 কত দেবদেবী রাস করছে, তাই না। রাজা প্রজা সবাইকে সেখানে দেখানো আছে। তো এত কি করে এত নিখুঁত কারিগরি করতে হবে, এত বিশাল নৃত্যের ভাব দেখাতে হবে, এত যে ভাবনা আসলো মাথায়, নিশ্চয়ই সে কোনো সত্যযুগী আত্মাই হবে, কোনো রাজা মহারাজার আত্মা হবে। সে এই রকম দৃশ্য তার জীবনে দেখেছে যে সবাই রাজা প্রজা মিলে কি করে রাস করছিলাম, সে কথা তার দৃশ্য তার মাথায় এসেছে। তবে তো সে বলেছে মিস্ত্রিগুলোকে যে এইভাবে বানাও ওইভাবে বানাও, তাই না। तो जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है, आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वो जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य, इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, তাই না। আর নিচে 108 তপস্বী দেখানো, যে স্বর্গে গেল কেমন করে, 108 তপস্বী হলো, তাই না। তো তাদের মধ্যে কপালে দেখানো হলো আত্মা চমকাচ্ছে, হৃদয়ে দেখানো হলো সূর্যের মতন শিব বাবা চমকাচ্ছে, আর ধ্যান মুদ্রায় বসে আছে। তো নিশ্চয়ই 108 বাবার বাচ্চার মধ্যে কেউ ছিল সেই রাজা তার সত্যযুগের সময়,
তাই জন্যে তার মনে পড়ল যে এইরকম তপস্যা করা হলো, তবে এইরকম রাস সেখানে চলল, সেখানে এইরকম সত্যযুগ আসলো, দেবী দেবতা এইভাবে আনন্দে ছিল। তো এই দৃশ্য সঙ্গম যুগের দৃশ্য, সত্যযুগের দৃশ্য সবকটা যখন সাক্ষাৎকার হলো, স্বপ্নে দেখলো, তার মনে পড়লো, यादगार তখন তো সে তৈরি করলো না। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, यह फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, भलदर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। তাই না? শিব বাবা দেখো কি সুন্দর সত্য কথা বলে দিচ্ছেন। যারা কৃষ্ণ ভক্ত, বৈষ্ণবাত্মা, নিজেকে বৈষ্ণব বলে, কিন্তু বিষ্ণুপুরী কখন ছিল, কৃষ্ণপুরী কখন ছিল সেটাই জানে না, সব দাপরে বলে দেয়। তাই না? কৃষ্ণ যে দাপরের অপবিত্র মাটিতে পাও রাখবে না, এই কথা পর্যন্ত জানে না। কৃষ্ণের মহিমা করে, কিন্তু সঠিক মহিমাও জানে না যে সে কত মহিমাযোগ্য। তাই না? श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे ऊंचे ते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो, विश्व में शांति कैसे स्थापना की थी उनका सैंपल है। তাই না? আজকে বাবা খুব দিলওয়াড়া মন্দির याद করছেন। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। তাই না? আগে তো দিলওয়াড়া মন্দিরে, তাই না, যখন বাবার বাচ্চারা যায়, জৈনীদের ভালো লাগতো না, বলে এরা সব কি উল্টো পাল্টা বোঝায়, কেননা সেখানে তারা তো মহাবীর জৈনকে দেখায়, তাই না? কিন্তু এখনও ওদের 108 তপস্বী হয়নি, ওদের তো, তাই না, 24টা না কতটা গুরু আছে। তবে যাই হোক, তো ওরা সেইভাবে বোঝায়। এবার যখন বিকেরা গিয়ে সব উল্টো পাল্টা বোঝায়, বাবা যেরকম, শিব বাবা যেরকম বোঝায় সেরকম বোঝায়, তো প্রথম খুব ওরা রেগে যেত। এখন কি করে, এসে বলে এসো তো, বলো তো কি বলেছে তোমাদের ওখানে, শিব বাবা কি বলেছে বলো, তাই না? এখন শুনতে চায়, বলে যে কি বলে ওখানে শিব বাবা বলো, তাই না? तुम समझते हो फिर भी समझते नहीं, कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की थी। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वो स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। তাই না? বাবা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আসলে 18 সেপ্টেম্বর, তাই না, হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পিস ডে, বিশ্ব শান্তি দিবস। তাই জন্যে বাবা আগে থেকে 17 তারিখ বাচ্চাগুলোকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাকে তো ইন্টারন্যাশনাল পিস ডেতে ডাকা হবে, কোথায় কি ভাষণ করবে, তাই না? তো তাদেরকে যেন তোমরা মেসেজ দিতে পারো যে লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতেই আসল শান্তির দুনিয়া ছিল। এই জন্যে 17 তারিখ বাবা পুরো শান্তির দুনিয়ার एग्जाम्पल दिए बोझाচ্ছে। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है।
नई दुनिया अब स्थापना हो रही है, तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, न बतलाते हैं, न समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज, ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो, তাই না? শিব বাবা বলছেন ওদেরকে বোঝাও যে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা গান করো, কিন্তু রিয়েল শ্রীকৃষ্ণের মহিমা তো তোমরা বোঝো না। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वो भी मॉडल दिखावें। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है, अम्बा का भी चित्र है, তাই না? দিলবাড়া মন্দিরে শিব বাবারও চিত্র আর মম্মারও চিত্র আছে। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं, भुजाएं तो 2 होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं, वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेबिन बनाया, सदगति दी है, তাই না? বাবা বলছেন মাউন্ট আবু হলো ভগবানের আসল অবতরণ ভূমি, যেখান থেকে সে সারা দুনিয়ার সদ্গতি করলো। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है, তাই না? जैन धर्मेও शिवलिंग আছে, তাই না? সব ধর্মেই শিবকে মানা হয় কোনো না কোনো রূপে। তো বাবা বলছেন সেই শিব माउंट आबूते आसे। तो सबाई तीर्थस्थान आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी? बोलो चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है, ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर समझें। तुम्हारा आबू का नाम वाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वो जानते हो? बाबा কত সুন্দর বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে যারা শান্তির জন্য ভাষণ দিতে ডাকবে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে কোন শান্তির কথা বলছো, কবে বিশ্বতে শান্তি ছিল সেটা কি তোমরা জানো? तो विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल शादी सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है, आबू ही सबसे बड़ा ऊँचेते ऊँच तीर्थ है। बाबा बोलছেন দিলবাড়া মন্দিরের মতন মন্দির আর কোথাও নেই, যেখানে সঙ্গম যুগ দেখানো, সত্যযুগ দেখানো, শিব বাবা দেখানো, তপস্যা দেখানো, ব্রহ্মা বাবাকে দেখানো, মম্মা বাবাকে দেখানো হয়েছে, তাই না? এরকম तीर्थभूमि और कोথাও देखानो হয়নি। वो बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते नहीं नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। তারপরে বাবা বলছেন আমি সবাইকে দেখি কে কীরকম পুরুষার্থ করছে, কে কোন পদ পাবার যোগ্য আছে, আমি সবাইকে দেখি, তাই না? বাবা তো দেখে, আমরা নিজেকে দেখি তো যে আমরা কীরকম পুরুষার্থ করছি, কোন পদ বাবা দেবে আমাকে, আমার যা পুরুষার্থ আছে। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे, তাই না? পুরুষার্থ তো অধুরা। এই সময় যদি শরীর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আর কোন পদ পাবে, পুরুষার্থ কমপ্লিট হয়নি। याद के यात्रा की मेहनत
वो समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। बाबा बोलছেন दिलवाड़ा मंदिरे आमिও আছি, आदि देवो आछे, वैकुंठो देखानो आछे। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। यह सब दुख है ना, अकाले मृत्यु होती रहती है, वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़े ही इन बातों को समझती है, তাই না? बाबा বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান ভরপুর করছেন। वो समझते हैं, नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं यह दुनिया अब पुरानी गई की गई। वो तो कहते हैं 40,000 बरस पड़े हैं, तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 बरस का है, তাই না? 40,000 বছর কলিযুগ কি বাকি থাকবে, পুরো কল্পই হলো 5,000 বছর। 5,000 বছরে কত পরিবর্তন, তাই না? নিজেদের জন্মের সময় দেখো কেমন ছিল দুনিয়া, আর এখন কেমন হয়েছে দুনিয়া। যদি এইটুকু 50 বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন, তাহলে ভাবো 5,000 বছরে কত পরিবর্তন। तो पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जगता था। बोले ना कुंभकर्ण छिलो 6 मास घुमातो 6 मास जागतो। तो কে আছে সে কুম্ভকর্ণটা? সব আত্মা, সত্যযুগী আত্মাগুলো, তাই না? 6 মাস জেগে থাকে সত্যতেতা যুগে, আর 6 মাস অজ্ঞানে ঘুমিয়ে থাকে। तुम कुंभकर्ण थे, यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं यह सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बताते हैं हम शिव बाबा पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो वो भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है, তাই না? বাবা বলছেন সবাই তো একমত ভাবনা নিয়ে বাবার কাছে আসে না, কেউ কেউ শুধু ভাবনা থাকে, ভগবানের বাড়ি আছে, ভাবনাতে চলে আসে, তাই না? तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वो तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा, बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है, তাই না? বাবা বারবার বলছেন যেমন ভক্তি করেছো তেমন ফল বাবা অবশ্য দেবে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের আশা এখন করতে হবে না, সাক্ষাৎকার হবে লাস্টের সময়। আগে তৈরি তো হয়ে যাও, পুরুষার্থ করে নাও। শুধু দেখলে কি হবে যদি সেই রকম তৈরি না হতে পারি। ওই জন্যে বাবা বলছেন আগে তৈরি হয়ে যাও, তো আমি প্রচুর সাক্ষাৎকার করাবো। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौधा भक्ति करो, उनसे कुछ मिलता नहीं, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वो शोभा तो कम हो ही जाती है।
यह तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, তাই না? এত কিছু বুঝিয়ে বাবা কি হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন, সারাদিন নিজেকে আত্মা মনে করব, শিব বাবার यादे থাকবো যাতে বিকর্ম विनाश হয়। पढ़ाई की बात है, बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया वो कुछ भी है नहीं, তাই না? দেখানো হয় না কুঞ্জবন আছে, রাধাকৃষ্ণ রাস করে, সে কী কী সব মথুরাতে यादगार রেখেছে। বাবা বলছেন এইগুলো সব বানানো यादगार, এগুলো আসল यादगार না। न कोई गोपी गोपियों का खेल है, यह समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जौहर नहीं होगा, किसी को तीर लगेगा नहीं, তাই না? বাবা বলছেন সেবা করলেও সবাই তীর লাগবে না, কি চাই? যোগ, যোগের জহর, জহর মানে ধার, তাই না? জ্ঞান যদি তলবারি হয় तो जोग बल होच्छे तलवारीर धार। तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है, अभी मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया, তাই না? কৃষ্ণকে কি বানিয়ে দিল? কালো বানিয়ে দিল, রামকে কালো, নারায়ণকে কালো। বাবা বলছেন এই করেই তো সব বেড়া ডুবিয়ে দিল, তাই না? अब बाप समझाते हैं यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। तो बाबा बोलছেন आत्मा হয়ে বাবাকে यादও করতে হবে, পড়াই ধারণও করতে হবে, দিব্য গুণও धारण করতে হবে, पवित्र होते হবে। नंबरवार तो होते हैं, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। यह सारी राजधानी स्थापना हो रही है, मासी का घर थोड़े है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू, और कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वो और बात है, তাই না? বাবা আজমের শনি মন্দিরেরও কথা বলে যেখানে স্বর্গের মডেল আছে। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो एक्यूरेट यादगार है। कभी अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आपे ही कहेंगे कि तुम लिखो, अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। तो बाबा बोलছেন देह अभिमान থাকলে राग क्रोध चले आसे। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। तो सारा दुनिया शुधु देह अभिमानीर कारणे एके অপরের উপরে ক্রোধ করতে থাকে, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারা যদি দেহি অভিমানী থাকে তাহলে ক্রোধের উপরে कंट्रोल হবে। तो पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। बाबा बोलছেন देही अभिमानी होबार पुरुषार्थ करते हबे। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, তাই না? কি বলবে না পুরুষার্থীরা, যে ভাগ্যে থাকলে হবে, তাই না? जो नसीब में होगा, ভাগ্যে থাকলে হবে, এই কথা কখনো পুরুষার্থী আত্মা বলবে না, সে মেহনত করবে। वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, देही अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है, ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा, कि जो नसीब में होगा। भाग्যের উপরে ছেড়ে দিতে হবে না, পুরুষার্থ করতে হবে। सेंसिबल बनना है, सेंसिबल बनना है। दूसरा, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है, फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है, सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान। तो बाबा বলছেন জ্ঞান শোনানোর সময়ে জ্ঞান যা বাবা বলছে ধারণ করতে হবে, আর সেবা করার সময়ে যোগ বল धारण करते হবে, तबे ज्ञाने तीर लागबे। वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति से, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले, याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो, बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना, तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, या सोचना ही योग है। और मुख से बार बार कहना, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को, लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई दिल से कहने वाले हैं,
कोई नॉलेज के दिमाग से, कोई नॉलेज के दिमाग से जो दिल से कहते हैं, जो दिल से कहते हैं, उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय, दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं, सदा काल की नहीं। तो बाबा বলছেন বাচ্চার মনে যদি বারবার বাবা বাবা করে কথা আসে তো যোগ হয়ে গেল, আর যদি সেবার মধ্যে বাবা এটা বলেছে, এটা বাবার কথা আছে, তাই না? যদিও বা সেবার সময় বাবার শব্দ ইউজ করা যাবে না, ভগবান বলতে হবে, কিন্তু বুদ্ধিতে তো থাকবে যে বাবার কথা বলছে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো সেবার মধ্যে যদি বাবা বাবা করবে তাহলে সেটা সেবা হয়ে গেল। মনে বাবা বাবা তো ইয়াদ জমা হলো, মুখে বাবা বাবা তো সেবা জমা হলো। কিন্তু বাবা বলছেন মুখে বাবা বাবা কেউ দিল থেকে বলে, কেউ দিমাগ থেকে বলে। দিমাগ থেকে বললে অল্পকালীন খুশি পাবে, সেবা ভালো হবে, সবাই বলবে ভালো বলেছে। কিন্তু যদি দিল থেকে বাবা বাবা বলা হয় তাহলে তীর লাগবে সামনেওয়ালার, সেও খুশি পাবে, শক্তি পাবে, আর যে সেবা করবে সেও খুশি পাবে, শক্তি পাবে, অনেকক্ষণ ধরে থাকবে, তাই না? তো ডিফারেন্স বুঝতে পারলে বাবা শব্দের কমাল, দিল থেকে দিমাগ থেকে ইয়াদ কখন জমা হবে, সেবা কখন জমা হবে। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं, सच्चे परवाने हैं। तो शिव बाबा हलो क्षमा, क्षमा माने आलो। तो आलो জ্বললে সব পোকাগুলো কি করে, এসে লাফাতে থাকে। তো বাবা বলছে শিব সম্মার উপরে ফিদা হোনে वालाई হলো সচ্চা পরবান, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো।